Hello, this is a mic test. Am I audible? If I'm audible, you're requested to drop yes into the question section. I repeat, if I'm audible, please drop a yes into the question section. Okay, so thank you for being a part of this demo session. We'll be starting off with a presentation. Introducing us, we belong to Decoration Digital Marketing Services Private Limited. We are a private limited firm registered and recognized by Government of India, and we were incorporated on 12th of October 2018. So we are basically working into digital marketing sector. Digital marketing is basically anything or promotion of any stuff, any brand, anything online. So in today's demo session, we'll be discussing about some important stuff, that is overview of digital marketing, scope of digital marketing in India, advantages of digital marketing over traditional marketing, career opportunities, digital marketing in business, and some key components of digital marketing. And in case you're having any doubt, you can just drop it out into the question section and I'll be answering your queries. So, advertisement of products via social media, mobile phones, etc. is known as digital marketing. Not only advertisement of products, it includes advertisements or marketing of any services, person, places such as Gujarat tourism, and that is a part of digital marketing. Next slide. So, features of digital marketing. Digital marketing is money saving. It helps in online communication, convenient user experience, 24/7 services, instant feedback, and startups choose digital marketing to endorse their products. And as well as digital marketing is quite time saving. Scope of digital marketing in India. Opportunities for digital marketing profession are huge in India. Internet users have reached around 463 million. India has become the country's third largest internet population. 300 million will get added into the population ascending the internet in India within the next 3 years. And this industry is having approximately 8 lakh jobs at present. So here is some key differences between digital marketing and traditional marketing. In digital marketing, you can reach out to the maximum people, whereas in traditional marketing, you are limited to a specific audience. In digital marketing, you can specify clients' target audience, such as you can target the location, you can target some particular age, you can target some particular gender, and anything you want, particular interest. Whereas in traditional marketing, it is not possible. It is versatile. The digital marketing is versatile. You can make changes in the advertisements, whereas traditional marketing is not that versatile. In digital marketing, there is some immediate communication, whereas in the traditional marketing, there are some delay in the communication sector as well. Career opportunities in digital marketing. In this slide, I'll be talking particularly about India. So digital marketing positions that are present in India. First, you can be a digital marketing manager, content marketing manager, content writer, inbound marketing manager, social media marketing expert or specialist, search engine marketer, search engine executive, conversion rate optimizer, web developer, freelancing, and basically there are a lot of opportunities in this sector. So today we'll be discussing about some practical opportunities in digital marketing or how to start your career in digital marketing. For this, we'll be taking a sample domain name and we will be working on a particular website as of now. And after the demo session, whosoever has requested you to attend this demo session, you can get in touch with that person. He will be providing you for the tools on which you can work on today, and those tools will be valid for complete 1 day. आप उस पे जितने पंगे ले सकते हो आप ले सकते हो. And in the meanwhile, I'll be shifting this presentation and I'll be seeing if anyone has asked any question or not. Okay. So till time we are not having any questions, so we'll be shifting towards the presentation now. So today we will be working on a sample domain with the name of bussybros.in. Bussybros, what exactly is a domain name?
Domain name is the name of the website. For example, facebook.com, it is a domain name. Google.com, it is a domain name. ddms.in, it is a domain name. Name of the website is known as a domain name. Second is the web hosting. Web hosting is, for example, आप फोन से कोई भी फोटो खींचते हो, वो आपके वेबसाइट के, जो आप फोन से फोटो खींचते हो आपके फोन की स्पेस में जाकर सेव हो जाती है. इन अ सिमिलर मैनर फेसबुक पे फोटो डालते हो, यहाँ से चलाते हो चलती है, कहीं और से चलाते हो चलती है, तो वो फोटो भी कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाती है. उस फोटो हम कहते हैं, उस डाटा हम कहते हैं वेबसाइट का सर्वर के अंदर जाके सेव हो गया. इन टेक्निकल टर्म्स हम उस वेबसाइट के नेम को, सॉरी, उस वेबसाइट के जो सर्वर होता है उसको हम वेब होस्टिंग बोलते हैं. सो एक टूल होता है जिसको वेबसाइट का नेम एंड वेबसाइट की होस्टिंग को कंबाइन कर देते हैं. आपका एक टूल बनता है जिसको हम कहते हैं control panel. How to access your control panel? You can just write your domain name.com or .in/cpanel. That is your control panel. When you will be clicking on enter key, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा. जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, जितनी भी सेटिंग्स होती है वो सारी आपके कंट्रोल पैनल से ही होती है. एंड सेम गोज फॉर योर वेबसाइट. जितनी भी सेटिंग्स होगी वो सारी सेटिंग्स आपके कंट्रोल पैनल से ही होती है. सो हम यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका कंट्रोल पैनल हम लॉग इन कर लेंगे. सो दिस इज द कंट्रोल पैनल और द सेटिंग पैनल. जो भी आप सेटिंग्स करना चाहो आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स कर सकते हो. सो यहाँ पे काफी ज्यादा टूल्स होते हैं सच एज फाइल्स मैनेजर. फाइल मैनेजर से जितनी फाइल्स होता है वो मैनेज कर सकते हो. वेब कैशिंग, वेब कैशिंग से जैसे हमारा फोन होता है, फोन के अंदर काफी ज्यादा कैश फाइल्स, एक्स्ट्रा फाइल्स आ जाती है जो हम यूज नहीं करते हैं. आप यहाँ से वो सारी कैश फाइल्स, एक्स्ट्रा फाइल्स रिमूव कर सकते हो. यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डोमेन ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप साइट पब्लिश कर सकते हो, यहाँ पे आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हो, यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर्स बना सकते हो, यहाँ पे अपने मेट्रिक्स देख सकते हो, कितने विजिटर्स आए, कितना डाटा आपका कंज्यूम हुआ है, यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हो, यहाँ पे अपनी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हो. बेसिकली आपके कंट्रोल पैनल के अंदर काफी ज्यादा टूल्स होते हैं जो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो. सो टुडे we'll be starting off with control panel. And control panel, first we'll be talking about the commercial email account. Commercial email account होते क्या है? Anything @ your domain name.com. फॉर एग्जाम्पल जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की ईमेल आईडी ये नहीं होगी info@flipkart@gmail.com. वो होगी info@flipkart.com, contact@flipkart.com, help@flipkart.com. Basically, as I said, anything @ your domain name.com. Like in this case, our website's name is bussybros.in. So we can make anything @bussybros.in. For this, we will be scrolling down and यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा email accounts. We'll be going to email accounts, and after clicking on email accounts, हम यहाँ पे create पे click करेंगे जहाँ से हम अपना email account बना सकते हैं. I'll be taking a sample name, for example, Namrata, Namrata. Now we want to create an email account with the name of Namrata @bussybros.in. We will enter any password. Like in this case, we are taking the tagline of the company, that is to design the life you want. We will click on create. Simple, हमारा यहाँ पे email account create हो गया, namrata @bussybros.in. Very easy. यहाँ पे आपने जितने भी email accounts बना रखे हैं वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे. जैसे namrata @bussybros.in का जो email account है उसको access करना है. For this, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेक मेल. हम सीधा यहाँ पे चेक मेल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप अपना ईमेल अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हो. आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू. सारे सेम सॉफ्टवेयर हैं ऑलमोस्ट, बस अलग अलग कंपनी ने बनाए हैं. एंड हमने राउंड क्यूब पे क्लिक किया तो सेंटर में सॉफ्टवेयर था, यहाँ से आपका नॉर्मल मेल एक्सेस हो सकता है. आप यहाँ पे कंपोज मेल पे जा सकते हो, सेंड मेल पे जा सकते हो. सो बेसिकली जो भी ईमेल अकाउंट के अंदर होता है, आपके जीमेल के थ्रू होता है, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो. नेक्स्ट, now here you can click on connected devices. Using these settings, you can insert these settings in your Gmail ID or the Gmail application that is in your mobile phone, and you can configure this email account in your mobile phone as well. तो इससे आपको बार बार अपना लैपटॉप यूज भी नहीं करना पड़ेगा. जैसे नॉर्मल हमारी Gmail ID होती है,
हमारी मर्जी होती है उसको एप्लीकेशन से चलाना, एप्लीकेशन से चला सकते हैं, लैपटॉप से चलाना है हम लैपटॉप से चला सकते हैं, सेम इस केस के अंदर भी जाता है. So I'll be shifting towards the presentation again. So the topics that we had to discuss were what is domain and hosting that I've already explained. Second, how to access your cPanel that I have already explained. How to create commercial email account that I've already explained. Now I will be again shifting to the cPanel of the website. So I'll be going to the home page of the control panel. Now what we want to do is we want to create a autoresponder of this email account. For example, whenever we order something at Flipkart, we get an automated reply, thank you for contacting Flipkart. Our technical team is reading your mail, or thank you for connecting with Flipkart. Your order is being processed. Can you check back within these hours, these days, these minutes? वो शायद फ्लिपकार्ट के कोई ओनर्स वगैरह सेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक मैसेज का ऑटोमेटेड रिप्लाई हो रखा है जो फिक्स हो रखा है. आप वैसा ही कोई भी पर्टिकुलर रिप्लाई फिक्स कर सकते हो. कोई भी आपको मेल करेगा उसको ऑटोमेटेड रिप्लाई आपकी साइड से चला जाएगा. फॉर दिस सिंपली विल बी अगेन गोइंग टू ऑटो रिस्पॉन्डर. इसको हम ऑटो रिस्पॉन्डर बोलते हैं. हम ऑटो रिस्पॉन्डर पे जाएंगे एंड हम यहाँ पे ऐड ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करेंगे. इंटरवल 0 आवर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो एकदम से चला जाए. ईमेल वाज नम्रता. I'll be verifying the spelling. NAMRATA. Okay. Namrata @ourdomainname.com. So ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखी होती है, Namrata @domainname.in. फ्रॉम हम यहाँ पे कोई भी नाम भेज सकते हैं. सब्जेक्ट हम कुछ भी भेज सकते हैं. लेट्स से मैंने लिखा है थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस. नाउ कम्स द बॉडी. थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस. वी विल गेट बैक टू यू सून शॉर्टली. हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिख के हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हम इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा ईमेल आईडी पे हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर अटैच हो गया. कोई भी इस पे मेल करेगा उसको बिना किसी दिक्कत के उसके पास मेल चला जाएगा. सो आई विल बी टेस्टिंग दिस फीचर ऑल्सो. I will go to my Spark application. Spark is basically an application that helps you in accessing your mails in your MacBook. I'll click on Compose Mail. I want to send this email from, let's say, director@ddms.in. Click on Compose to namrata@basibwas.in. Subject: hello, test mail. और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, हेलो लिख देते हैं सिंपल. मैंने इसको सेंड पे क्लिक कर दिया. अब विद इन 1 मिनट हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी हमारे पास कोई नया मेल आया है. सो यस, वी विल बी अगेन कंटिन्यूइंग द डेमो सेशन. जब मेल आएगा हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. यस, हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है. हमने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया. 3 जून 4:15 यानी इसी टाइम पे हमारे पास एक मैसेज आ गया director@ddms.in पे फ्रॉम namrata@basibwas.in. जो भी हमने मैसेज डाला था वो यहाँ पे मैसेज आ गया है. तो इसको हम कहते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर. हमने एक मैसेज फिक्स करते हैं, कोई भी कभी भी इस ईमेल आईडी पे मेल करेगा उसके पास ये वाला रिप्लाई जाएगा ही जाएगा. ये प्रोफेशनलिज्म के लिए होता है. बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज इसको यूज करती है. एंड हम आपको अनलिमिटेड कमर्शियल मेल अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं विद अनलिमिटेड ऑटो रिस्पॉन्डर्स, दैट टू विदाउट एनी चार्ज. सो यस, आई विल बी क्लोजिंग दिस स्पार्क एप्लीकेशन नाउ. इसका काम हो चुका है. So next thing is how to add autoresponder. We have done this. Now how to install WordPress. WordPress होता क्या है, how to do the stuff in WordPress. So for this I'll be again going to my control panel of the website. So अब जब हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आ गए हैं, नीचे एक ऑप्शन आता है वर्डप्रेस. बट व्हाई वर्डप्रेस? वर्डप्रेस होता क्या है? 95% लोगों के माइंड में मिथ होता है कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है हमें पर्टिकुलर बहुत अच्छी कोडिंग आनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. You do not require any coding if you want to make a website.
वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। इवन आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम 23 एट द मोमेंट, एंड मेरे को कोडिंग आती हो नहीं आती, मैंने इस टाइम पे बहुत सारे कम से कम 2000 वेबसाइट्स में बना चुका हूँ या बनाने में हेल्प कर चुका हूँ। सो वर्डप्रेस इज सॉफ्टवेयर जो आपके बिहाफ पे कोडिंग करता है। आपको कोडिंग नहीं भी आती, आप बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड्स वेबसाइट आर मेड यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज यूजर फ्रेंडली, वर्डप्रेस इज कोडिंग फ्री, वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स। अगर आपको कोडिंग करना है, आप कोडिंग भी कर सकते हो। वर्डप्रेस इज एसईओ फ्रेंडली, दैट इज वर्डप्रेस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफी इजी वे के अंदर हो सकती है। सो आई विल बी मेकिंग दिस वेबसाइट लाइव विद द नेम ऑफ buzzfeedbrowse.in। अगर हम buzzfeedbrowse.in को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, शायद अभी ये वाली वेबसाइट ना खुले। यस, सो दिस वेबसाइट इज नॉट विजिबल। अब हम इसको एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। फॉर दिस वी विल बी गोइंग ऑन टू द वर्डप्रेस पैनल, देन वी विल बी क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल। अब यहाँ पे वर्जन चूज करना होता है। ऑब्वियसली विल बी चूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। HTTPS, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर वेबसाइट। डोमेन नेम हमारा buzzfeedbrowse.in है। एंड यहाँ पे आता है इनडायरेक्टरी। इनडायरेक्टरी होते हैं आपको वर्ड, आपका जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे ऋतिक डालता हूँ, तो जो हमारा वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर होगा वो खुलेगा HTTPS buzzfeedbrowse.in/ऋतिक। बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो वेबसाइट मेन buzzfeedbrowse.in पे चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे। साइट नेम लेट्स से buzzfeedbrowse। डिजाइन द लाइक यू वांट, हमने अपनी वेबसाइट का कोई भी यहाँ पे नाम दे दिया है, कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब हम उसका यूजर नेम डालेंगे। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस यूजर नेम नम्रता। दिस यूजर नेम इज केस सेंसिटिव। अगर हमने इसके अंदर एन को कैपिटल में लिखा है तो बाकी सब स्मॉल में लिखा है, तो हम लॉग इन करते हुए भी यही डालना होगा। उसके बाद हम कोई भी पासवर्ड लगा देंगे। डिजाइन द लाइफ यू वांट, मैंने इसका पासवर्ड डाला एंड उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। सो वील बी वेटिंग फॉर दिस इंस्टॉलेशन टू गेट कंप्लीट। 1 मिनट के अंदर हो जाती है। यस, इट इज डन। नाउ अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम हमारी जो वेबसाइट है ये लाइव हो गई है। जो अभी कुछ भी नहीं खुल रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ खुलने लग गया है। अभी आपकी वेबसाइट ब्लैंक नहीं दिखाई देगी। अब इसके अंदर हम सेटिंग्स करेंगे। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू द सेटिंग्स पैनल, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। हम इस पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से हमारा सेटिंग्स का पैनल खुल गया। हमें यहाँ पे जो भी सेटिंग्स करनी है हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, हम खुद आपको रेकमेंड करते हैं सिर्फ जितने पंगे ले सकते हो ले लो। इसके अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। सो लेट्स से वी वांट टू ऐड अ पर्टिकुलर पोस्ट, we will click on add new, we will click on post, simple। So we'll be adding a title। हम यहाँ पे कोई भी टाइटल डाल देंगे। उसके बाद लेट्स से we need to add a description। हमने यहाँ पे कोई भी अपना कैप्शन डाल दिया। लेट्स से हमें उसके बाद कोई फोटो ऐड करनी है। we will simply click on the plus icon and we will click on image। we will then click on upload image। हम यहाँ से कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से कोर्स ट्रेंड, ये हमने एक लोगो डिजाइन किया था, तो लेट्स से हमें ये वाला यूज करना है।
सिंपल, हमें इमेज ऐड करनी थी, यहाँ से हमने इमेज ऐड कर ली है. Let's say I need to add a YouTube video. For this, we will be opening a YouTube video, a decoration digital marketing services search करते हैं. We will be going to the videos tab. हमने यहाँ पे इस वाली वीडियो पे क्लिक कर दिया. This was the video of our first ever office. Now हम यहाँ पे जाएंगे, इसका वीडियो का लिंक जो URL होता है वीडियो का, हम वीडियो के URL को कॉपी करेंगे एंड हम फिर से उसी टैब पे जाएंगे जहाँ पे हमने पोस्ट डाला था. हम यहाँ पे YouTube सर्च करेंगे, YouTube पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे. एंड यहाँ पे आपका जो आपने वीडियो डाली थी ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे लाइव हो गई. So I've got a question from Ms. Twinkle Khanna. I've heard that we need to buy domain and hosting to create a website and to practice through digital marketing. Yes, you will be provided with your specific domain name and hosting. जैसा डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स के लिए ऑप्ट करते हो, आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स दिए जाते हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, जो आपका डोमेन नेम होता है, होस्टिंग होती है, आपकी पसंद का आपका डोमेन आपको प्रोवाइड करा जाता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं है, सब इंक्लूडेड है. सो लेट्स से हमने ये वाला पोस्ट डाल दिया. यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे, यहाँ पे और सेटिंग्स हम कर सकते हैं. आप चाहो तो इसका लिंक चेंज कर सकते हो, आप उसकी कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप कोई टैग डाल सकते हो. टैग्स बेसिकली वो वर्ड होते हैं जिससे क्या पता ये वाला पोस्ट खुल जाए. यहाँ पे आप कोई फोटो ऐड कर सकते हो, आप जो करना चाहो यहाँ से कर सकते हो. लेट्स से वी नीड टू पब्लिश दिस. हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे. हम यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली कर सकते हैं, इमीडिएटली नहीं करना हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं. हम यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, हम इसको प्राइवेट वीडियो कर सकते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. हम जैसे इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं, नीचे नोटिफिकेशन आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पोस्ट इज पब्लिश्ड. एंड ये जो हमारी वेबसाइट है हम इस पर लाइव रिफ्रेश करने का ट्राई करेंगे. एंड जैसे ही हम इस पर रिफ्रेश करेंगे, हमारी वेबसाइट पे वो वाला पोस्ट शो होने लग जाएगा. हेलो, हाउ आर यू, वी होप यू आर डूइंग सेफ, विश यू हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. जो भी हमने डाला था वहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिश हो गई. वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं था. एंड इसको आपको बहुत प्रोफेशनल वे के अंदर समझाया जाएगा. ऑब्वियसली इस टाइम पे आपको बहुत बेसिक चीजें बताई जा रही है. सो अगेन वी विल शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेबसाइट पैनल एंड उसके बाद हम अपना होम सेटिंग्स के अंदर जाना प्रेफर करेंगे. अब यहाँ से जो भी आप मीडिया पर जाओगे, जो भी फोटोज आपने डालनी है, आप यहाँ से वो मैनेज कर सकते हो. यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे अपने कमेंट्स चेक करते हो, किसने भी कमेंट किया वो आपकी वेबसाइट पर विजिबल हो जाएगा. आप यहाँ से अपनी अपीयरेंस एडिट कर सकते हो. अपीयरेंस में अलग अलग थीम्स होती हैं जो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए. जैसे यहाँ पे प्री बिल्ट थ्री थीम्स होती है जो आप यूज कर सकते हो. आप इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, आपके पास हजारों थीम्स आ जाएंगी जिसको आप ऐड कर सकते हो. Let's say we need to add a theme with the name of Hestia. Hestia is a theme that I personally like very much. हम Hestia पे क्लिक करेंगे, हम Hestia पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे. तो Hestia सर्च करा, हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया. थीम बेसिकली लेआउट होता है, आपको इनिशियल कैसे कैसे लेआउट इंस्टॉल करना है वो सिखाया जाएगा. बाद में आपको ये तक सिखाया जाएगा कैसे खुद का कस्टम पेज बना सकते हो जिससे आपको लेआउट की नीड ही ना पड़े. हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे. अब ये वाली थीम हमारी वेबसाइट पर डल गई है. हम इसको कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे. कस्टमाइज से आप अपनी जो भी आपने थीम डाली है आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हो.
अब जो पहले हमारी वेबसाइट थी वो ऐसी थी, अब जो ये वाली वेबसाइट है वो ऐसी है। बेसिकली जो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है। आप यहाँ पे और भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। फॉर लेट्स से मेरे को टॉप पे कुछ एडिटिंग करनी है, एडिट पे क्लिक किया मैंने, मैं यहाँ पे लोगो सेट कर सकता हूँ। हमने जो फोटो डाली थी उसी को ही फॉर द टाइमिंग हम लोगों की तरह यूज करेंगे, एंड ये लोगो हमारी वेबसाइट पर विजिबल हो गया। हम हेडर लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि काफी ज्यादा थीम्स होती है जो थोड़े डेमो कंटेंट देती है। डेमो कंटेंट एज एन आपकी वेबसाइट थोड़ा ऑलरेडी बना के देगी, एंड उसका आप खाली रिप्लेस भी करोगे तो आपकी वेबसाइट खुद ही बहुत अच्छी बन जाएगी। वन ऑफ सच थीम वॉज हेस्टिया, जो हमने इंस्टॉल की थी। उसको इंस्टॉल करते यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, हेस्टिया इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। सॉरी, वी हैव असेंबल्ड सम इंपॉर्टेंट लिंक्स टू गेट स्टार्टेड। हम इसका इंपोर्ट करेंगे थोड़ा डेमो कंटेंट, जो प्री बिल्ड डेमो कंटेंट होता है, एंड उससे क्या होता है आपकी वेबसाइट बनानी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। ऑल दो आप आगे एक बार जब ट्रेंड हो जाओगे इसका आप खुद से भी पूरा डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा नेसेसरी डाटा होगा जो ये इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। वी विल क्लिक ऑन इंपोर्ट, एंड ये हमारे बिना सारा काम कर सकता है। जितने प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जब अपनी वेबसाइट पर डालते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर हैविंग टू लैपटॉप, एक मेरे पास लैपटॉप है, एक लैपटॉप आपके पास है। दोनों का मॉडल सेम है, कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है। तब भी देयर आर चांसेस, हो सकता है मैंने लेट्स से मैंने कोई फोटोशॉप डाला हो सकता है जो आपके लैपटॉप में ना हो, आपने कोई गेम डाला हो जो मेरे लैपटॉप में ना हो। तो जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, ये जो गेम हो गया, जो फोटोशॉप हो गया, बेसिकली एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हैं जो आपने अपने लैपटॉप के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर जो वर्डप्रेस होता है वो हर किसी का सेम होता है, तब भी वेबसाइट लोगों की अलग अलग दिखाई देती है। वो क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी वजह से होता है। नाउ, जो हमने जो वेबसाइट का डेमो कंटेंट डाला था वो डेमो कंटेंट कंप्लीट हो गया है। हाँ, जो वेबसाइट के एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप डालते हो, उसको हम कहते हैं प्लगइन। जैसे कंप्यूटर टर्म्स में उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, वेबसाइट टर्म्स को प्लगइन बोला जाता है। So I'll be continuing on the demo session, that was how to import the theme. अब हमने थीम को इंपोर्ट किया, थीम का डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया, जहाँ पे हमारी वेबसाइट पहले ऐसे दिख रही थी। अब अगर हम इसको व्यू साइड पे क्लिक करें, अब हमारी वेबसाइट का कंप्लीट हुलिया ही बदल गया है। अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। लेट्स हम इसको थोड़ा एडिट करना स्टार्ट करते हैं। आई विल बी क्लिकिंग ऑन एडिट पेज कॉलम। आप एडिट पेज पे जाके आपको कोई टेक्स्ट एडिट करना है वो कर सकते हो, बट अगर आपको इसकी अपीयरेंस चेंज करना है आप यहाँ पे कस्टमाइज पे भी जा सकते हो। आप कस्टमाइज पे जाओगे तो उसका आप लेआउट चेंज कर सकते हो। सो हमने पहले ये वाला कस्टमाइज खोला हुआ था। कस्टमाइज ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो हम नया वाला खोलेंगे। ये वाला किसी और थीम का है जो हमने पहले खोला था, जो अब खोलेंगे ये दूसरी टीम थीम का है। तो जो पहली वाली थीम थी किसी काम की नहीं है हमारे लिए, तो हम इस वाले टैब को बंद कर देंगे। ये हमने पब्लिक, जब हमने अपना पोस्ट जो डाला था उसको प्रीव्यू किया था, ये वो वाला, हम इसको भी अभी के लिए बंद कर देंगे। सो अब यहाँ पे जो हमने अपना काम किया था वो सारा यहाँ पे शो होगा। लेट्स से मेरे को टॉपिक एडिट करना है, मेरे को लोगो लगाना है, लोगो तो मैंने बता दिया था कैसे लगेगा। अब यहाँ पे काफी ज्यादा सेटिंग्स हैं। आप फ्रंट पेज सेक्शन पे जाओगे, बिट टाइटल सेक्शन, सबके अलग अलग है। बिट टाइटल सेक्शन पे गया तो जो बड़ी वाली इमेज है उसको एडिट करने का ऑप्शन आ गया। लेट्स से मुझे इसको एडिट करना है, मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा। आई बी क्लिकिंग ऑन अपलोड फाइल्स, आई विल बी देन क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट फाइल्स। मैं यहाँ पे
अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने अपना लोगो को सिलेक्ट किया एंड लोगो हमारा यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगा। दैट वाज अ हाई क्वालिटी फाइल, तो हो सकता है अपलोड होने में थोड़ा टाइम ले ले। सो ये अपलोड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ये वाला डाला था, हम अभी के लिए इसी को यूज़ करते हैं। इसको हम चूज इमेज पे क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो इसकी बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज कर दी। अब मेरे को बैकग्राउंड इमेज सफिशिएंट लग रही है, लेट्स से मेरे को ऊपर वाला टेक्स्ट नहीं लिखना। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको कट कर दूंगा। हमने अपना जो सेंटर में कंटेंट आ रहा था उसको हटा दिया। मेरे को इमेज बॉक्स में बटन टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, बटन यूआरएल भी नहीं चाहिए। मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। तो जो भी मैंने रिमूव किया वो यहाँ से हट गया। अब लेट्स से हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर दिए। हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे, basibrowse.in। हम इसको नए टैब में ओपन करेंगे। जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस हमारी वेबसाइट पे विजिबल है। हमने नीचे तो कोई चेंज नहीं किया था, हमने ऊपर चेंज किया था एंड वो चेंज हमारी वेबसाइट पे विजिबल है। हम यहाँ से नीचे से भी कोई भी चेंज हम कर सकते हैं। लेट से हमें ये एडिट करना है, टीम सेक्शन, हम इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। टीम मेंबर 1, हम यहाँ पे उसकी इमेज चूज कर सकते हैं। टाइटल, लेट से मोहित वर्मा सीईओ। हमने इनका टाइटल एडिट कर दिया, तो यहाँ पे जो पहले नाम लिखा हुआ तो उसकी जगह मोहित वर्मा लिखा आ जाएगा। हम इसको अपडेट करेंगे, पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो डेमो सेशन में आपको पता लग गया होगा कि काम करना बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ भी यूज करना मुश्किल नहीं है। सो वील बी शिफ्टिंग टू द मेन वर्डप्रेस सेक्शन। We'll be going to the dashboard. सो अब पेज का मैंने आपको बता दिया। प्लगइन, जैसे मैंने बोला, एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। प्लगइन का अलग अलग काम होता है। थोड़े प्लगइन्स होते हैं जो आपकी स्पीड इंक्रीज करते हैं, थोड़े आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज करते हैं, थोड़े आपके अपीयरेंस अच्छे करते हैं, थोड़े आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे करते हैं, थोड़े आपके स्टार्ट देखने के लिए होते हैं। काफी प्लगइन्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लगइन्स एंड अवेलेबल इन दिस वर्डप्रेस मार्केट। आप यहाँ तक कि गूगल से भी प्लगइन डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यूजर अगर लेट्स से आपको अपने वेबसाइट का किसी को एडमिन बनाना है, एडिटर बनाना है, कंट्रीब्यूटर बनाना है, ऑथर बनाना है, आप किसी को भी रूल दे सकते हो, अपना उसका रोल प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ से आप उसको जो भी सेटिंग्स करना है आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। तो यस, दिस वाज फॉर द प्रैक्टिकल डेमो। आई बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन अगेन। सो व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग, ये मैंने समझा दिया। हाउ टू एक्सेस योर सी पैनल वो मैंने आपको बता दिया था। हाउ टू क्रिएट कमर्शियल ईमेल अकाउंट वो मैं बता चुका हूँ। हाउ टू ऐड ऑटो स्पॉन्डर वो मैं बता चुका हूँ। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस वो भी हो गया। हाउ टू ऐड अ पोस्ट भी हो गया। हाउ टू ऐड अ थीम भी हो चुका है। इंस्टॉलेशन ऑफ डेमो कंटेंट भी हो गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लगइन भी हो गया है। सो आई विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड टिल देन मैं क्वेश्चन देख रहा था, किसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो। Okay, Abhinav has said that my voice is not clear. Okay, I'll be trying to speak a bit louder and in a clear voice so that it is audible to you. Sorry for the inconvenience caused. So, okay, next slide. Highlights of the course: pocket friendly Google products, flexible timings, Google certificates, corporate exposure, freelancing projects, free website building tools, online offline trainings, seminars, webinars, internship guaranteed. तो बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। गूगल के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, आप जिस हिसाब से चाहोगे उस हिसाब से आप टाइमिंग ले सकते हो। आपको अराउंड 10 सर्टिफिकेट्स होता है जो गूगल से प्रोवाइड किया जाता है। आपको हाउ टू वर्क इन कॉर्पोरेट समझ आ जाता है। आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। एक बार आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई है,
आप उसके अंदर फ्रीलांसर का प्रोजेक्ट्स भी पिक कर सकते हो। आपको वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स हमसे ही प्रोवाइड करे जाएंगे। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हो। ऑफलाइन जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर नहीं हो रहे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लेने आप ऑफिस आ सकते हो, बट आपकी वन ऑन वन ट्रेनिंग होगी, पर्सनल ट्रेनिंग। एंड पर्सनल ट्रेनिंग का ऑब्वियसली एडवांटेज अलग ही है। सेमिनार्स अभी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। आप वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। एंड इंटर्नशिप हम गारंटेड प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म में आगे जाके काफी स्कोप होने वाला है। जो ऊपर वाली फोटो है, ये वाली फोटो हमारे नए पटेल नगर वाले ऑफिस की है। जो नीचे वाली फोटो है वो हमारे जनकपुरी वाले ऑफिस की है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हमारा ऑफिस है। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेनिंग्स आप कैसे कैसे ले सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले सकते हो, ट्यूटोरियल्स के थ्रू ले सकते हो, कॉल्स के थ्रू ले सकते हो। पर्सनली आई वोंट रिकमेंड यू टू टेक ट्रेनिंग यूजिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। जो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, मैं रिकमेंड करूंगा वन ऑन वन पर्सनल ट्रेनिंग्स लो, दैट थ्रू यूजिंग टीम वियर और एनी डेस्क, ताकि आप अपने लैपटॉप पे काम करें, पीछे से एक सीनियर आपको सारा गाइड करो कौन चीज कैसे कैसे होने वाली है। ऑफिस ट्रेनिंग्स अभी नहीं होती हैं। आप पर्सनल ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कॉल पे हो जाते हैं, या तक कि आप कॉलेजेस के अंदर भी वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो। हम वहाँ पे ट्रेनिंग्स आपकी लेते हैं। सो हेयर आर सम कॉन्टैक्ट ऑप्शंस इफ यू वांट। आपको जो प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन तो आपको शेयर कर ही जाएगी। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड ये थोड़ा हमारी फोटो गैलरी, जो सेंटर वाली फोटो है वो डीसीएसी कॉलेज की है, वहाँ पे हमारा इवेंट हुआ था। एंड दिस इज मी, ओनर ऑफ द कंपनी, इन द center image, left hand side, wearing a great blazer। एंड जो हमारी राइट वाली टॉप फोटो है वो हमारी लेडी इवेंट कॉलेज की है। एंड नीचे वाली फोटो भी हमारे ऑफिस की ही है। सो हेयर आर द मॉड्यूल्स जो हम आपको सारे प्रोवाइड कराएंगे। आई विल बी जूमिंग दिस, अगर ये होता है तो। लेट्स मिनिमाइज दिस, आई हैव this here as well. So here is the screenshot of our brochure। आपको स्टूडेंट्स पैकेज के अंदर जो हमारा बेसिक पैकेज है दैट इज ऑफ 9,000 रुपीज। उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा आपको, फिर वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स दिए जाएंगे, हाउ टू प्लान अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट गूगल पे कैसे ऊपर आती है, आपका लोकल एसईओ, दैट इज आपकी वेबसाइट नियर बाय लोकेशन के अंदर कैसे हिट हो सकती है, आपका गूगल वेब मास्टर्स, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, बिंग पे कैसे आपकी वेबसाइट रैंक होनी है, गूगल पे कैसे आपका जो एनालिटिक्स है, कौन सा विजिटर कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट पे होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ से आपको पता लग सकती है। बिंग वेब मास्टर मैंने बता दिया। क्रिएटिव डिजाइनिंग, आप पोस्टर्स कैसे बना सकते हो क्रिएटिव तरीके से। आप अपना सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल पे एडवर्टीजमेंट्स आप कैसे कर सकते हो। आपका ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हो, वीडियो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, अर्न एज अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रिपरेशन ऑफ सर्टिफाइड एग्जाम्स, सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑप्टिमाइजेशन, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, वो सारी चीजें ब्रोशर के अंदर नहीं लिख सकते। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कैन जस्ट गूगल डेकोरेशन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। हमारी पहली वेबसाइट ही आती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ddms.in के नाम से। आप उसको विजिट कर सकते हो। एंड आफ्टर विजिटिंग दैट वेबसाइट, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के टैब पे क्लिक कर सकते हो। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे डिजिटल मार्केटिंग जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो वहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर पाया, वो सारे यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स दिखा सकते हैं। ऑन डिमांड ट्रेनिंग, वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स, वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन, गारंटीड इंटर्नशिप्स। एंड यहाँ पे हमारे 8,000 9,000 वाला पैकेज है, 13,000 वाला पैकेज है। आपका बेसिक पैकेज के अंदर जो जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अलग अलग इस पर विजिट कर सकते हो। एंड जो हमारा बेसिक पैकेज है वो हमारा 9,000 रुपीज़ का है। एंड जो हमारा एडवांस पैकेज है वो आपका एड ऑन है। अगर आपने बेसिक लिया है आप तभी एडवांस वाला ले सकते हो। वो हमारा 4,500 का एड ऑन है। अगर आप दोनों साथ में लेना चाहोगे तो आपको 13,000 के दोनों मिल जाएंगे। अगर अलग अलग लोगे
तो आपका 30,500 का पड़ता है. So I'll be again shifting to the brochure. आपका जो एडवांस पैकेज होता है, देखो एडवांस पैकेज के अंदर डिफरेंस क्या है. एडवांस पैकेज इज बेसिकली द ई कॉमर्स पैकेज. अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी है अपनी वेबसाइट के थ्रू या सीखनी है, एंड डिजिटल मार्केटिंग विदाउट प्रोडक्ट सेलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता. प्रोडक्ट सेलिंग आपको आनी चाहिए. आपको जैसे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन कैसे लगाना है, विश लिस्ट का ऑप्शन कैसे लगाना है, आपको स्टॉक कैसे रेडी करना है, आउट ऑफ स्टॉक कैसे करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है, उसका प्रोडक्ट कैसे लगानी है, फेसबुक के थ्रू कैसे प्रोडक्ट सेल करने हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे प्रोडक्ट सेल करने हैं, ई कॉमर्स को एनालाइज कैसे करना है, प्रोडक्ट शिपिंग कैसे मैनेज होगी, अमेजन पे कैसे प्रोडक्ट सेल होगा, फ्लिपकार्ट कैसा कैसे सेल होगा, हाउ टू मेक अ मल्टी वेंडर वेबसाइट की एक ही वेबसाइट पे और लोग आकर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सेलर. आपको यहाँ पे अलग डोमेन दिया जाएगा, अलग होस्टिंग दी जाएगी. तो बेसिकली आपका 13,000 वाला पैकेज आपको 2 डोमेन और 2 होस्टिंग स्पेसेस प्रोवाइड करी जाएगी. जो हमारा होस्टिंग स्पेस है वो आपका ब्लू होस्ट से होगा. वो अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड कमर्शियल मेल अकाउंट, अनलिमिटेड ऑटो रिस्पॉन्डर्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, सारी चीजें आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड करी जाती हैं. सो बट सर्टिफिकेशंस यू कैन गेट फ्रॉम DDMS. यहाँ पे सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको डेकोरेशन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी. क्या क्या आपका बेनिफिट होगा वो सारा यहाँ पे लिखा है. लो स्टार्टअप कॉस्ट एंड काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. सम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय आवर स्टूडेंट्स. जो कॉस्ट है क्या वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हो? यस डेफिनेटली यू कैन पे द अमाउंट विद इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. बट जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है आपको फर्स्ट आपको 50% देनी होती है, एंड जो सेकंड आपका फाइनल बैलेंस अमाउंट होता है वो आप विद इन 1 मंथ दे सकते हो. नेक्स्ट, एट एन एवरेज जो कोर्स होता है आपका 2 मंथ का कोर्स होता है. हाँ, एट एन एवरेज जो आपका कोर्स होता है आपका 2 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स होता है. एंड हम इसको 2 मंथ्स अजम्पशन तरीके से बोलते हैं, इसको 2 मंथ्स गारंटी नहीं करते हैं. रीजन बीइंग हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है. कोई होता है बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई होता है लेट सीखता है. हो सकता है कोई 1.5 महीने के अंदर भी सीख जाए, हो सकता है कोई 3 महीने भी लगा ले. तो बेसिकली जो हमारा मेन एम होता है वो चीज़ों को पुश करना नहीं होता. हम सारी चीज़ें डिटेल में समझाते हैं. तो आपको ट्रेनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ट्रेनिंग से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है. So I'll be again telling all the I'll be explaining all your doubts. First is again how to access your cPanel. If you need to access your control panel, you can just visit your domain name.com/cpanel, CPANEL control panel. What's the course fee? Okay, Twinkle, our basic package is of 9,000, our advanced package is of 13,000. And yes, in case you'll want to enroll, अगर आप आज या कल रात को 12 बजे से पहले पहले आप एनरोल करते हो तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा. इट इज अ प्रमोशन ऑफर जो अभी हमारी कंपनी में हम इसको रन कर रखा है. तो जो बेसिकली आपका 9,000 वाला पैकेज आपको 5% डिस्काउंट पे, दैट इज आपका 450 रुपी ऑफ हो जाएंगे. दैट विल कॉस्ट यू 8,550. एंड जो आपका एडवांस वाला पैकेज है उसके अंदर 13,000 में से आपका 650 रुपी ऑफ हो जाएगा, जो आपको पड़ेगा 12,350 रुपीज. Okay, how can we earn through this? There are a lot of methods using which you can earn after learning proper digital marketing. So बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल. अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो. आप फ्रीलांस वेबसाइट मेकिंग कर सकते हो. आप फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हो. लोगों की अलग अलग ब्रांड्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग अपने कराना चाहते हैं, आप उसके अंदर हेल्प कर सकते हो. आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगा, नॉट एग्जैक्टली ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको पोस्टर मेकिंग आ जाएगा, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा. आप अलग अलग तरीके से आप इसको, ऑब्वियसली बात है आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा जिससे आपका जॉब में भी हेल्प होगी. प्लस अगर आपने खुद का ब्लॉग बनाया, अगर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा है, आप उस पर गूगल एडवर्टीजमेंट्स भी ले सकते हो, बिकॉज ऑफ विच यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न डायरेक्टली फ्रॉम गूगल. जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सारे गूगल एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न करते हैं. यूट्यूब पे एड्स आते हैं जिससे उनकी इनकम होती है. इन द सिमिलर मैनर आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट्स आ सकती हैं, एंड आप उन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आप अर्न कर सकते हो. सो एनी अदर डाउट? So I'm waiting for your doubts.
In case you are having any doubt, just put your doubt in the question section and I'll be answering your query. Okay, Naman has asked a question. How many people are currently viewing this webinar? At present, there are 30 people who are attending this webinar. Okay, what is the role of sales and marketing interns? Rishabh, for the internship queries, you can contact your HR or the person who has recommended you this presentation. We will not be discussing the tools about the internship over here. Currently, we are discussing about the demo session. In case you're having any doubt regarding the digital marketing or the content or the digital marketing course, you can ask the queries related to the same. So, I guess all your doubts are cleared because I'm not getting any doubts as of now. And yes, this was the end of the demo session. You already have my contact number. My name is Ritik. And in case you don't have my contact number, the person who has invited you to the presentation, you can take my contact number from him or her, and he'll be assisting you out. So yes, that's all was today's webinar. I hope you and your family are doing safe. Thank you. God bless you. Wish you health, wealth, and prosperity. Have a good day. Bye bye.